how we'll Oh begin. shit. Sorry. Kohli just got out here. 66. सेंचुरी देंगे. ये आदिल रशीद हमेशा लेके जाते हैं इसको. भाई कोहली की कब बनेगी सेंचुरी यार? हाँ यार. तेरा ओके है या मतलब थोड़ा बहुत तो कटेगा, दैट्स फाइन. आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू. मतलब इशू है, लोग बोलेंगे कि अरे कट रहा है ये वो. आई रियली डोंट नो. मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था नहीं. ऑल राइट बॉयज, लेट्स डू इट. Hi guys, welcome to another episode of another one from the stands. And as you can see, we have changed the setting and we've taken all the feedback that we got from the last video. And we are here, and you can see my full body. People wanted I got a lot of feedback saying that people wanted to see my full body, and they could just see a floating head. So here I am, and here we are, and it's a better setting. We are closer, so it's more intimate, and. So today's topic is something which we grew up playing, and this is something that we knew how. This is how we know cricket is gully cricket, and this is something जो इंडिया में तो बहुत कॉमन है. Like the very first form of cricket that you play in India is gully cricket. वो तो फिर टीवी पे देखा और सब पता चला कि अच्छा प्रॉपर क्रिकेट ऐसा होता है. तो शुरू करें? Yeah. Okay. So what's your earliest memory? I think. So for me, I think where the cricket has started for you. तो मेरे को देख, मेरी एक्चुअली पता है क्या, दिस इज द फनी थिंग कि एक्चुअली द फर्स्ट मेमोरी दैट आई हैव एज अ किड, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि तुम 2-3 साल के होते हो तब तुम्हारी फर्स्ट मेमोरी. तो मेरी फर्स्ट मेमोरी वही है कि जब मैं छोटा था, इन समर वेकेशंस वी यूज्ड टू गो टू माय मॉम डैड शॉप, एंड शॉप के बाहर देयर वाज अ पैसेज. ठीक है, तो वहाँ प्लास्टिक बॉल और प्लास्टिक बैट. तो वो मेरी फर्स्ट क्रिकेट मेमोरी, मेरी फर्स्ट मेमोरी है कि जब मैं सबसे छोटा था तो वो चीज़ मेरे को याद है. एंड मेरे को याद है वो प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक बैट एंड वो ऐसे फेंकते थे, एंड लाइक मैं खेल रहा हूँ, और तब से क्रिकेट का शौक चढ़ा. तो मेरी तो सबसे फर्स्ट मेमोरी वही है कि प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक बैट. मैं आई थिंक आई वाज 3 years एंड वाज आउटसाइड माय मॉम डैड्स शॉप. तो फॉर मी दैट इज द अर्लीस्ट क्रिकेट गली क्रिकेट मेमोरी दैट आई हैव. एंड देन उसके बाद तो बहुत सारी हैं, बट यार तेरी क्या है? Yeah, I think same. Mine also is the same. My father used to throw those plastic balls at me, and I have a very wonderful photograph. I don't have it right now, but so I'm betting. We can put it in the so definitely in the final cut. So Yeah. it'll be here over my face. So I'm batting there. I'm 3 or 4 years old, and the stumps are this high, and I'm this high. And the bat is also, if you put bat and besides me, the bat is also higher than me, but still I'm somehow carrying the bat and playing. So I think that's a very sweet photo what my father has taken. I think that's what the cricket has started for me. तो see I know कि जैसे कि तू तो you've been Rahul Dravid, right? तो तू तो हमेशा proper cricket ground में and everything, but there must be some unconventional form of cricket that you must have also played. Yeah, of course, meeting friends, and they are building corridors as such, playing, whatever, time pass and all that thing. And of course, like the traditional things like one tip, one hand, and all these things, which used to irritate me a lot because I was very technically sound, and this is not how cricket should go, And to be fair, मस्कट में ज़्यादा गलियाँ तो है नहीं, तो Okay. गली क्रिकेट का तो सवाल ही नहीं बनता. बट हाँ ठीक है, बट फेयर इनफ. Weirdest rules की अगर बात करें It's a different rule because every gully has their own. नहीं तो मैं पहले मैं बताता हूँ कि मेरे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गली क्रिकेट कौन से थे. Which balls have you played for? Like, हाँ तो what kind of balls वो have भी you बताता हूँ मैं कि तो हम लोग यूजुअली वी यूज्ड टू प्ले विद हॉकी का बॉल. Oh. ओके, जो हॉकी का बॉल आता था ना, हम उससे खेलते Is थे. it leather or not? नहीं वो Oh, it's those one with those The- holes on it. Holes- right? holes वाला. okay, वो हॉकी का That was bad. इट वाज वो लगती थी तो Yeah. पूरा वो पड़ जाता था. नहीं, सो हॉकी का बॉल था, एंड हम लोग के वहाँ पे कैसा था, वी हैड लेट मी जस्ट काउंट कितने हमारे वहाँ पे थे. देयर वाज 1 2 3
4, 5, 6 places in our society because I used to live in a big society. तो वहाँ पे there were 6 places where I used to play cricket. No, 7. एक घर के बाहर भी. Okay, वो घर के बाहर जो चारों घर के बीच में जो कोर्टयार्ड जैसा होता है ना वहाँ पे भी. तो 7 places. तो द फर्स्ट वन वाज मैक्सिमम जो क्रिकेट खेला है वो इससे खेला है कि वो हॉकी के बॉल से देयर वाज अ स्केटिंग रिंग. ओके, तो इट वाज लाइक अ स्क्वायर थिंग एंड बीच में एक वो ऐसे एक होल जैसा था जिसमें ग्रिल था एंड नीचे देयर वाज बेसमेंट पार्किंग. तो वहाँ पे हम लोग खेलते थे. तो वी यूज्ड टू प्ले विद दैट. उसमें तो एक वो था. देन उसके ये थोड़ा हाइट पे था तो देयर वर अ फ्यू स्टेयर्स. वहाँ से थोड़ा नीचे जाओ तो देयर वाज अ बैडमिंटन कोर्ट. तो जब क्रिकेट खेलना है ठीक है तो बैडमिंटन का सब सामान निकाल देने का. एंड वहाँ पे वो कैसा होता था कि अभी यहाँ पे ऊपर स्केटिंग रिंग सही है बट कभी कभी होता था कि बहुत दिन से स्केटिंग रिंग पे खेला आज ये वाले में खेलते हैं. सो द रूल्स चेंज. रूल्स में भी हम लोग जाएंगे बट एंड देन लास्ट वाला था द बिगेस्ट वन. ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूजुअली फुटबॉल खेलते थे बट कभी कभी मन हुआ तो क्रिकेट भी. तो वहाँ के रूल्स भी डिफरेंट. देन पार्किंग लॉट में 2 एरियाज थे. एक लंबा वाला था ठीक है जहाँ पे लाइक बॉलिंग वहाँ पे बॉलिंग करने का है. अभी सब जगह पे थ्रो है बट ये वाले में बॉलिंग करने का है. और देन एक छोटा एरिया था ठीक है जहाँ पे थ्रो है. एंड देन देयर वाज एक हमारा इंडोर भी था. तो इंडोर हमारा एक क्लब हाउस था जहाँ पे टीटी था एंड यू नो वो क्लब मीटिंग्स होती थी एंड कमिटी मीटिंग्स होती थी वो सब था. एंड देन वहाँ पे एक छोटा सा इंडोर ऐसा कॉरिडोर था जहाँ पे हम लोग इंडोर खेलते थे. एंड एक था घर के बाहर जो कोर्टयार्ड होता है. अभी सब जगह में सब टाइप के बॉल से हम लोग ने खेला हुआ है. खाली प्रॉब्लम ये था कि जो सबसे बड़ा वाला ग्राउंड था ना वहाँ पे बॉल बाउंस नहीं करता था. तो वहाँ पे यू हैव टू प्ले विद रबर और टेनिस बॉल. सो द टाइप्स ऑफ बॉल्स दैट आई यूज्ड टू प्ले विद वर रबर, टेनिस, ये हॉकी वाला एंड लेदर वाला. तो ये 4 टाइप के बॉल्स थे. Have you ever played with the crazy balls, the small ones? नहीं. So we used to have this small, like a room size area where we used to play with that crazy balls. Okay, now the thing is, you have to click it one, you have to hit it directly to the wall, और wall से सीधा catch करना है. Okay, now that's a trick because you cannot directly catch it. Okay. So our usual muscle memory or memory is you catch it directly, but that was not an out. So you have to hit the ball in the wall and then you have to catch it. वो ऐसा है ऐसा है. मतलब like squash. So it's like squash. Okay. So that was crazy. Then we played with tennis balls, rubber balls, leather balls. But tennis also we used to have 2-3 types. हाँ 2-3 टाइप्स थे. So ऐसे ज़्यादा प्लेयर है, ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं तो चलो let's play with the heavy Playmaster. Playmaster was the best quality tennis ball. So Playmaster. वो थोड़ा हेवी आता हाँ, था. और कम लोग हैं, पैसे नहीं है तो चलो वो सस्ता वाला ले लेंगे, हल्का वाला. और अगर हल्का वाला है तो बॉल दूर जाएगा नहीं because it's very light ball. तो हवा में. हाँ हवा में. So ग्राउंड भी छोटा कर देने का, बाउंड्री देख लेने का. Playmaster है तो बाउंड्री अलग है. नहीं हमारे वहाँ पे भी कैसा था. तो हम लोग स्केटिंग रिंग पे खेलते थे ना. तो स्केटिंग रिंग के ऊपर कैसा था. इट वाज लिटरली अ स्क्वायर थिंग. नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स द रूल्स यूज्ड टू चेंज. एवरी प्लेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स रूल्स हमेशा चेंज होते हैं. तो हमारे यहाँ पे कैसा था कि लिटरली बीच में एक साइड के स्क्वायर के एक बीच में स्टंप्स है एंड वहाँ पे बॉलर जो है वो एकदम सेंटर ऑफ द स्केटिंग रिंग खड़ा है. ठीक है, अभी अगर कम प्लेयर्स है 3 या 4 प्लेयर है खाली तो एक ही खाली ऑफ साइड है. ठीक है, मैं लेफ्टी था तो मेरे लिए ऑफ साइड था बट फॉर राइट इट वाज लेग साइड. तो वही साइड खुला है. उसमें भी स्टैंडर्ड ज्यादा प्लेयर है कम प्लेयर है. वो स्केटिंग रिंग के हाफ से डायरेक्ट अगर बाहर गया तो आउट. ठीक है, तो यू हैव टू प्ले ग्राउंड. तो मेरा जो कवर ड्राइव है ना ठीक है वहीं से आई है बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज दैट कि वहाँ पे वो फील्डर है तो मेरे को फील्डर को बीट करना है. एंड वो फील्डर को बीट किया तो देन तो बॉल इज जस्ट गोइंग बिकॉज पीछे ही बाउंड्री है मतलब 4 रन है. तो 6 तो ये जगह में एग्जिस्ट करता ही नहीं बिकॉज तुमने 6 मार 6 एंड आउट भी नहीं है. एक होता है 6 एंड आउट के 6 मार के आउट. इधर ऐसा भी नहीं है. तो इधर वैसा है. एंड देन अभी दोनों साइड पे देयर आर वॉल्स. ठीक है, एंड पीछे तो उसमें वॉल का रूल भी कैसा कि तुमने डायरेक्ट अगर वॉल पे मारा तो आउट. आई डोंट नो, मैंने हर एक बार गली क्रिकेट खेला पर ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है आई डोंट गेट इट. कि तुम उसमें डायरेक्ट अगर एज लग के अगर तुम्हारा थिक एज लग के वॉल पे लगा तो आउट. उसका लॉजिक क्या है किसी को पता नहीं. और 1 टिप 1 हैंड. नहीं ये हम लोग इससे करते जब हॉकी बॉल से करते थे तो 1 टिप 2 हैंड था बिकॉज इट वाज हेवी एंड डायरेक्ट कैच तो आउट ही है बट अदरवाइज इट वाज 1 टिप 2 हैंड. तो एक वो था. फिर जब नीचे वाले बैडमिंटन कोर्ट में जा रहे हैं तो वहां पे एक रूल जो मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेट करता था वाज दैट इफ यू निक द बॉल एंड इट हिट्स द बॉल यू आर आउट. ओके, बिकॉज देयर मस्ट बी अ स्लिप बिहाइंड अज्यूमिंग. अच्छा. हाँ, सो इफ यू हिट इट एंड देन यहाँ पे था 6 एंड आउट. ओके, सो इफ यू हिट द बॉल और बाहर जाता है तो 6 एंड आउट.
एंड सबसे स्टैंडर्ड क्लोजेस्ट रूल्स टू क्रिकेट वाज इन द बिगेस्ट ग्राउंड कि वहां पे वी यूज्ड टू फॉलो लाइक ऑल नॉर्मल कि डायरेक्ट कैच ही आउट है, ये वन टिप वन हैंड वाला बिजनेस नहीं है और ऐसा सब कुछ नहीं है. एंड वहां पे एंड देन पार्किंग में ऑल्सो अगेन डायरेक्ट कैच आउट है, एंड वहां पे तो बॉलिंग करके एंड नॉन स्ट्राइकर है. नहीं तो पहले तो ये नॉन स्ट्राइकर वाला फंडा था ही नहीं, रन भागने के थे ही नहीं बाउंड्री में. सो योर स्कोर यूज्ड टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4 या 2, एंड वो भी पता है एक था कि अगर ये बॉल पे लगा तो 2 रन डिक्लेयर, एंड वो सब रूल्स थे. एंड देन पीछे हमारे पीछे ना एक सोसाइटी थी, तो वो सोसाइटी में अगर बॉल गया तो आउट, ठीक है, कैसे भी बाउंस हो गया कैसे भी गया और आउट, और जिसने मारा उसको जाके नया बॉल लेके आने का, नहीं तो आंटी से झगड़ा करके वो बॉल उससे लेने का. और उसमें पता था कि ये वाला घर जो है ना ये आंटी नहीं देती, और वो अगर अंकल घर पे अंकल अच्छे है, ठीक है, तो हम लोग को देखने का कि आंटी आंटी चिल्लाने का, अगर आंटी आए तो नहीं कुछ नहीं, अंकल आए तो हाँ तो अंकल बॉल दे दो. तो हमारे वहाँ पे ऐसे सब रूल्स थे. So last time we played, I think, I don't remember actually, but this was back in 2008 and 9, maybe when I was in the first or second year of college. So on the weekdays there won't be any more players because everybody is working and they have all scheduled. But on Sundays there will be a full squad. Okay, so I remember last few years what we played, we used to have some 17-18 players of all cages, like people studying in second standard, third standard till the college level. Okay, so we have come up with this very different kind of cricket. So what we used to do is Saturday evening everybody has to come down, whoever is playing on the Sunday, and there used to be 3 captains every week. Okay, and everybody will get 150 points, and then you have to bid for a good player. Oh yeah, we used to do it. Yeah, we have a proper notepad and all, and we used to exactly. We used to bid for it, and then there will be 3 teams, 6 players, each team 6 match a game. Then it's a tri-series we used to play, and we have come up with different laws. Like every Sunday, let's do this tomorrow. So in one Sunday we came with, let's put 1 super over. So in 6 overs, a captain can select 1 over. Okay, this is going to be a super over. So you hit 1 run, you'll get 2 runs added in the score. Yeah, if you hit this scoop shot, you'll get 2 runs on the shot. So one weekend we come up with that rule. You play those weird kind of shots that Kevin Peterson and David Warner used to play. You know, go at left and switch hits. Yeah, switch hits and then scoop. For that shots you get 2 runs, extra runs for that. So I think that was very interesting. पूरी game ही change कर दिया. And every Sunday the version of cricket or rules used to change. Like, okay, let's do tomorrow this. Let's do tomorrow this. I think it was crazy. Yeah, so cheatings. हम लोग तो क्या चीटिंग करते थे. एक होता था पेस, फास्ट, ठीक है, फास्ट मतलब एक था कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ. एक तो मेरे को बैटिंग का इतना शौक नहीं था, बट एक बार बैटिंग आई है तो फिर आउट नहीं होना, ठीक है, कि आई यूज्ड टू नॉट लुक फॉरवर्ड टू बैटिंग, बट एक बार बैट हाथ में आया फिर आउट होना है. तो और वो भी उसमें भी गुस्सा आता था कि अगर पहले दूसरे बॉल पे आउट हो गए कि कुछ खेलने ही नहीं मिला. On that note, every time a player comes in and if he gets out on the first ball, अरे ट्रायल बॉल यार, ट्रायल बॉल फर्स्ट बॉल, बट एक्चुअली वो ट्रायल ही होता है. फर्स्ट बॉल ट्रायल होता है. पर एक और बात है, मैं जो अग्री करता हूँ कि इनिंग्स का फर्स्ट बॉल ट्रायल बॉल होता है. हर एक प्लेयर के लिए तुम ट्रायल बॉल नहीं देना. वो भी कई लोग चीटिंग करते हैं कि नहीं मेरे को लगा ट्रायल बॉल था इसलिए मैंने तो exactly. पर वो दैट इज रॉन्ग. मेरे को लगता है कि वो चीज दैट इज यही चीटिंग की बात है. यही चीटिंग की बात है कि ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी. और बॉलर्स बॉल डालने से पहले अरे स्टंप नहीं दिख रहे, थोड़ा साइड से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थोड़ा साइड से स्टंप नहीं दिख रहा, तीनों स्टंप कवर हो रहे. तो यार मैं बैट्समैन हूं, मेरे को जो करना है मैं करूंगा. तू कौन होता है मेरे को बोलने कि स्टंप दिखा. एक वो होता था, और दूसरा आउट होने के बाद बहुत जोर से डाला है. बहुत फास्ट है. वो तो पहले अपील करने की है कि फास्ट है. एंड अगर किसी ने गलती से आउट दे दिया अंपायर ने, लाइक अगर कोई सामने अंपायर खड़ा है, हमारी मेरी टीम का बंदा, बिकॉज़ देयर इज नो एक्स्ट्रा प्लेयर, तो मेरी टीम का बंदा अंपायर खड़ा है या नॉन स्ट्राइकर अंपायर, अगर उसने मेरे को ऐसे विकेट कीपर वाला आउट दे दिया, व्हिच इज अ साइड 50-50 कंट्रास्ट, तो उसको गाली देना ही है. मैच के बाद उससे झगड़ा करना है. तो जरा से गलत डिसीजन लेता है. कौन सी टीम से? पर वो कितना इलॉजिकल है. तो एक बार सोचना कि वो अंपायर का क्या फेयरनेस होगा. वो बैटिंग टीम का है, बैटिंग कर रहा है, इज नॉन स्ट्राइकर और अंपायर है. नहीं वो छोड़. एक होता है कि जो या तो आउट हो गया या उसकी बैटिंग लास्ट आने वाली, वो जाके अंपायरिंग कर रहा है. वो किस हिसाब से वो फेयर डिसीजन देगा? और वो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज का, कोई सेंस ही नहीं बनता. फिर और चीटिंग में तो अरे डूड व्हाट ऑल वी यूज्ड टू डू. If I would say one thing is that it doesn't come under cheating, but whose bat it is, that person decides the rules. Yeah. So I mean, you have to make sure you please that person. Like, okay, if he gets out, अरे ट्रायल बॉल था, okay, चलो तेरे लिए ट्रायल बॉल. नहीं वो मैंने एक मीम बनाया था ना कि
the annoying kid in your society group who owns the bat and he's like, look at me, I'm the captain now. I'm the captain now. तो वो जो बोलेगा वही करने का, और वो अगर आउट होगा मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मम्मी बुला रही है मैं घर जा रहा हूँ. तो एक वो था बैट वाला. एंड एवरी सोसाइटी हैज दैट किड जो बॉल खोने के बाद रोता है, अरे मेरी मम्मी चले गया, मेरा बॉल ढूंढ के दे दो प्लीज यार मेरा बॉल. पर बॉल भी लेके आने का वो सब पिच इन करके कि जैसे तो बोला कि कितने लोग हैं उसके हिसाब से आज कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि जब तक बॉल खोता नहीं तब तक गेम चलता रहता है. जब भी बॉल खो गया, ओके चलो अभी घर जाएंगे, बॉल नहीं है. और वो बहुत इरिटेटिंग होता है कि अच्छी मैच चल रही है और कोई इडियट आके वो शॉट मारेगा और फोकट में क्यों मार रहा है यार, वो मार देगा और फिर गेम खत्म. अभी क्या करने का बैठो, यू नो. वो या तो किसी के घर वर गया है तो वो आंटी से जाके उसके बेल मार के करने का, नहीं तो फिर अगर जैसे मेरे केस में तो बाजू वाली सोसाइटी थी तो उसमें थे कि ये बंगले फिक्स है, कि ये बंगले में गया तो गया, ये बंगले में तो पक्का मिलेगा, ये बंगले में तो कोई रहता नहीं है, आधे टाइम रात को आते तो ये भी गया. तो एंड वहाँ पे कई बार कैसा होता है कि कोई घर वाले वापस आते हैं तो वो जितने बॉल पड़े तो सब फेंकते हैं. तो वन फाइन डे यू कम इनटू द ग्राउंड एंड लाइक, यू नो, लॉटरी लगेगी, इतने सारे बॉल कहाँ से आए. मेरे को एक बार याद है, एक बार कैसे हुआ था, हम लोग वो स्केटिंग रिंग पे खेले. तो मैंने जैसे बोला वो स्केटिंग रिंग थोड़ा हाइट पे, तो स्टेयर्स चढ़ के, तो उसमें क्या होता था कि दूसरा तरीके का आउट होने का था, उसकी जो रेलिंग थी वो खाली इतनी हाइट की थी, तो उसमें निक लग के अगर नीचे गया तो आउट ऑफ नीचे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, ठीक है ना. इमेजिन हॉकी बॉल, ठीक है, तो वो जो 3 गाड़ी थी उसमें परमानेंटली ऊपर डेंट हो गए थे, ठीक है. अभी एक बार क्या, एंड कांच वांच पे भी लगा हुआ है बट फूटा नहीं कभी भी, तो पर वो डेंट वेंट तो पड़ गया. अभी हुआ क्या कि एक बार बहुत जोर से निक लगी तो वो बहुत पीछे गया, तो वो बहुत पीछे, वो लंबी रोड थी, ठीक है, सोसाइटी की. तो वो बंदा आराम से गया. अभी वो हीरोगिरी करने के लिए उसने बॉल उधर से फेंका, ठीक है. बॉल उधर से फेंका सीधा गाड़ी के कांच में, एंड शैटर्ड. इट वाज, आई रिमेंबर, इट वाज अ CLO, ठीक है, उतनी पुरानी गाड़ी, इट वाज एन एक्सपेंसिव कार. तो उसका कांच, और हम लोग सब भाग, एंड मेरे पास बैट था, मेरे बैट से खेल रहे थे, तो सब भागे, मैं भी भागा, और मैं देखा मेरा बैट किधर है, तो उधर ही पड़ा है. मैंने बोला यार बैट तो लेके आ जाते यार, मेरा बैट उधर पड़ा है. सो आई हैव टू गो इन अगेन इन दैट फायर जोन कि जाके मेरे को बैट मेरा लेके आने का, नहीं तो अगर कोई बैट ले गया तो मेरा बैट जाएगा. मेरा MRF वाला बैट था, तो वो मेरे घर है. तो कांच वांच तो बहुत फोड़े हैं, क्योंकि तुम लोग ने भी फोड़े होंगे ना. I have a crazy story. So this was happened in 2006-7. Okay, so I went to my maternal uncle's place. So I don't go there usually, but even जाते भी तो क्रिकेट नहीं खेलते थे. But that one time I saw few kids playing, same as mine age. So I thought okay चलो जाते खेलते करके, and I went. अब मेरे को rules पता नहीं थे because every gully has their own rules, so I didn't knew the rules. So जैसे तैसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे खेलना है. Now I was playing and there is this vintage car which is 1970s. Oh, wow. Okay, and there is an uncle who lives on the apartment who loves his cars. He has some 4-5 cars. I didn't know of the thing. आपने तो आया और मार दिया और ऐसे जोर से मारा, एक का tail light got broken. Oh, shit. Okay, and suddenly everybody starts running. I don't know what is happening because वो glass टूटा ना. कभी छोटे थे तो I was also afraid कि क्या हो गया, कोई कुछ हो गया क्या. भागो करके everybody ran away. And I was there for almost a week. 2 days nobody played there because everybody was afraid. Okay, everybody was afraid. And the best part was nobody was known my name. मतलब किसी को मेरा नाम पता नहीं था, तो किसी को पता नहीं चला. Now cut to 2019 when I went for India for the first time. Okay, and I went to meet my uncle, the same uncle. So I was coming down and I was just saying the grass is still broken. Oh shit! Repair नहीं करा. Then I asked my mama like. broken. अरे किसी ने तोड़ दिया था, वो अनफॉर्चुनेटली वो अंकल को टेल लाइट मिली नहीं, तो इसके लिए अभी तक पता नहीं कौन तोड़ के गया था. Oh my god. पता नहीं कौन था. Wow, that's iconic. Yeah, so my legend is still there on the car. मतलब तूने अपना निशान अभी तक छोड़ के रखा है. Still there. सही है. बाकी फाइट्स तो बहुत किए. From the cricket fights किए तुमने? हाँ, अरे बहुत. Used to fight a lot. वो तो फाइट तो एवरी टाइम होती है ना. Yeah. No, even and there are always 1 or 2 uncles in every society or every ground who doesn't want kids to play. वो जाके पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देंगे, आवाज कर रहे हैं, ये सो रहा है. मतलब how messed up do you have to be in your head कि तुम बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, नहीं इधर नहीं खेल सकते. बस नहीं खेल सकते. अरे पर क्या प्रॉब्लम क्या है यार?
पर कुछ अंकल होते आवाज मत करो, खेलो बट आवाज मत करो. हाँ मतलब तो कैसे खेले? How can you play?